देखो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है. सो विच आर द सोर्सेज टू अंडरस्टैंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. सो नाउ माय डियर लर्नर्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द sources to understand the Mauryan administration. So let's discuss about the sources to understand the Mauryan administration. So let's discuss about the sources. For sources of Mauryan administration. So sources of Mauryan administration. क्या मौर्य प्रशासन को समझना है तो किन स्रोतों के जरिए समझ सकते हैं? किन स्रोतों के जरिए समझ सकते हैं? International trade was there. So during the time period, guys, maximum areas, yes, you will find that they have the trade relations. Directly, we do not say that they have the trade relation with the foreign countries, but in the 13th rock edict of Ashoka, you will find the information about the foreign rulers as well. So you will find the information about foreign rulers as well, but directly you cannot say that they used to trade with the foreigners or not. May be possible that international trade might used to happen, but it was not on a large scale, because India was a self-sufficient during ancient time period. कि देखो हमें ट्रेड करने की जरूरत किसी से नहीं थी. Maximum Indian subcontinent was under the Mauryan rule, so they do not need any type of further trade with the people. But we have the evidences that we have the evidences of the contemporary rulers in the 13th major rock edict of Ashoka. You will find the information about the rulers who were ruling in different part of the world, and they were parallel to Ashoka, in the parallel reign to Ashoka. So you can say that since he has written about the foreign rulers, so they must have trade relations with them. कि जब तक उनके साथ व्यापारिक संबंध नहीं होगा तो वो कैसे जानेंगे कि उस पर्टिकुलर राज्य में रूल कौन कर रहा था. जैसे श्रीलंका का राजा था तिस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? सो दैट वी गेट टू नो अबाउट द एडिक्ट. सो माइट बी पॉसिबल कि दे यूज्ड टू हैव ट्रेड रिलेशंस. देयरफॉर Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to promote Buddhism in Sri Lanka. So they may have the trade relation with the foreign countries. So that we can conclude with the findings. I hope ये बात सबको समझ में आ गया कि ये आप कंक्लूड कर सकते हैं फाइंडिंग से, बट वी डू नॉट हैव डायरेक्टली द एविडेंसेस. तो फाइंडिंग्स के जरिए और उनके मेथड्स के जरिए आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दे माइट बी हैविंग द ट्रेड रिलेशंस विद द फॉरेनर्स एज वेल, बिकॉज इन द 13th मेजर रॉक एडिक्ट वेयर इट इज डिफाइंड कलिंगा वॉर, देयर यू विल फाइंड अबाउट द इंपॉर्टेंट फॉरेन रूलर्स हु वर रूलिंग पैरेलली, हु वर कंटेम्पररी टू अशोक. तो ये रूलर्स की जानकारी मिलती है. जैसे श्रीलंका का राजा तिस, हो सकता है फॉरेन रिलेशंस रहा हो, नेवी भी थी इनके पास, तो हो सकता है कि इनके साथ इसी वजह से इनके बारे में जानकारी हो. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू मेजर सोर्सेस. वी हैव टू मेजर सोर्सेस. One major source is one major source is what? First major source is the Arthashastra. Arthashastra that is written by Chanakya. Chanakya in Sanskrit. And the another major source of knowing the Mauryan administration is Indica. And this Indica, it is written by whom? So Indica, it is written by Megasthenes. So it is written by Megasthenes. Now let's see ki how Arthashastra, that is a book on political science and public administration. So Arthashastra, it is a book on political science plus public administration. Now how we get to, what we get to know about Arthashastra? So the whole Mauryan administration
इज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र। जो पूरा का पूरा दोस्तों मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अर्थशास्त्र पर ही बेस्ड है। इसीलिए आप देखोगे कि चूंकि अर्थशास्त्र लिखा किसने, आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य वाज द मेंटर ऑफ whom? सो आचार्य चाणक्य वाज मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस मौर्यन डायनेस्टी। तो पूरा का पूरा जो मौर्यन एम्पायर है दैट वाज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र। तो पूरा का पूरा जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र, बिकॉज चाणक्य, आचार्य चाणक्य was mentor, चाणक्य was mentor of चंद्रगुप्त मौर्य। So who was the founder of this dynasty? So whole Mauryan administration that was based on Arthashastra. Other than this, guys, let's discuss about the Indica. Indica, my dear friends, it is written by Megasthenes, and I have told you that Megasthenes was the Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya, and when Megasthenes came in the court of Chandragupta Maurya and wrote Indica, he described the Mauryan society and Mauryan administration properly. So he described Mauryan society, army, administration, taxation in detail. तो जो भी था पूरा का पूरा जो मेगास्थनीज ने जब लिखना शुरू किया तो उसने बहुत डिटेल में पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर को ही डिफाइन किया। और जब वो डिफेंस के बारे में लिखना शुरू किया, जब उसने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, सो ही मेंशन्ड अबाउट अ वन मेजर कमिटी that has 6 subcommittees for coordinating the activities. So then he wrote, my dear friends, Megasthenes mentioned about a committee divided into 6 subcommittees, 6 subcommittees for better administration, तो एक तो पूरा का पूरा पता चलता है हमें अर्थशास्त्र से, क्योंकि अर्थशास्त्र ही मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का बेस है। क्योंकि अर्थशास्त्र लिखा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने, तो भाई जो गुरुजी लिखेंगे तो चेला तो उसको फॉलो करेगा ही। एंड अर्थशास्त्र इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक टिल नाउ फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा लिखना शुरू किया मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंडिका में मेगास्थनीज ने दोस्तों जब इंडिका में लिखा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो कहा कि भाई एक बड़ी कमिटी थी जिसके अंदर 6 सब कमिटीज थी और वो डिफाइन करती थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेटरमेंट के लिए काम करती थी। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा कौन? तो रूलर चलाएंगे विद द हेल्प ऑफ आर्मी। तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस नहीं थी, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी के ही कंट्रोल में रहता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंट्रोल्ड बाय आर्मी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल वहां पर आर्मी ही करती थी। ऐसा नहीं था कि वहां कोई पुलिस होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा। जैसे अभी इंडिया में है कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस है और डिफेंस के लिए आर्मी है। तो उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि अलग से हमारे पास पुलिस होगी जो स्टेट के अफेयर्स को हैंडल करेगी और फॉरेन इन्वेजन्स के लिए आर्मी होगी। तो आर्मी दोनों रोल प्ले करती थी। दे यूज्ड टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट and they also used to fight with the enemies. तो उस समय during the time of Mauryan Empire army has to work on dual roles. अब सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इसने 6 सब कमिटीज बताई एंड these were all military committees. तो ये सारी की सारी मिलिट्री कमिटी थी। क्यों?
बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंट्रोल्ड बाई आर्मी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंट्रोल्ड बाई आर्मी। तो आर्मी ही पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती थी, इसलिए उसने 6 बताया कि सब कमिटीज थी जो आर्मी को, जो डिफेंस या जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती थी। नाउ विच वर दोज कमिटीज? So now we will discuss about all the 6 committees, but before I should discuss these 6 committees, am I clear to all? यहां तक सबको समझ में आया कि sources of Mauryan administration क्या हैं, कि कैसे हमें मौर्यों के शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है? How we get to know about the sources of Mauryan administration? Am I clear to all guys? How we can get to know about the sources of Mauryan administration? मौर्य प्रशासन के बारे में हमें कैसे पता चलता है? ये बात सबको समझ आई? देखो ये सारी चीजें अर्थशास्त्र वगैरह कि इससे कैसे पता चलता है, ये मैंने आपको एडिशनल ऑफ एनसीईआरटी बताया है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो किन सोर्सेस को समझना जरूरी है। एक तो अर्थशास्त्र को समझना, दूसरा इंडिका को समझना। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।